Welcome to MJCC Biology 12th class. We were discussing chapter number 14, the human respiratory system, and the objectives of our today's lectures are functions of the respiratory system. We'll talk about the breathing, inhalation and exhalation, about the respiratory volumes, and students will be able to learn about the control of breathing with the help of the brain, and about the transport of oxygen in the blood. So first of all, the functions of respiratory system, as we know that the respiratory system is actually providing the oxygen to the blood. So the circulation of the blood and the exchange of oxygen from the alveoli with the blood is actually happening because of the respiratory system. Along with that, the filtration process goes on. The cilia and mucus involved, we have already discussed about the cilia and about the stickiness of the mucus, the lubrication of the mucus, that it will stick the dust particles and the germs particle, bacteria, etc. And the cilia, the propulsion of the cilia will propel it back to the throat, okay, from the windpipe. So it protects the lungs from the dust and the bacteria, okay. Also humidifies the air for the sake of filtration. Also it moves the air and from the exchange surfaces of the lung, the surface area of the alveoli actually exchanging the oxygen with the carbon dioxide, and the air actually exchanging with those surfaces, exchanging the oxygen with the capillaries, and from the capillaries taking the carbon dioxide and will get rid of the carbon dioxide and protect the respiratory surfaces from outside environment, the membrane, the impermeability of the whole track of the windpipe. So also helps in the speech, the voice box, the larynx, the part of the respiratory system which is responsible for the production of voice. The vocal cords actually present over there. By striking the vocal cord, the sound can be produced. The different frequency actually depend upon the striking or the air or the force of the air coming and striking the vocal cords. Along with that, pH रेगुलेशन में हेल्प करता है एक्चुअली रिस्पायरेटरी सिस्टम. pH रेगुलेशन में किस तरह के CO2 को निकाल के आपके पास जो है वो pH को बरकरार रखता है. हम आगे उसमें स्टडी करेंगे इसमें नेक्स्ट में. सो कंपोनेंट्स ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम, जिस तरह हम ने पहले भी डिस्कस किया था एंड आपको नज़र आ रहा है सिलिया, जिस तरह आपके पास जो सिलिएटेड कॉलुनर एपिथेलियल सेल्स हैं और वहाँ पे म्यूकस सेल्स भी हैं जो सेक्रीट करते हैं म्यूकस को, एंड वो डस्ट पार्टिकल्स यू कैन सी कि वो आपके पास यहाँ पे स्टिक कर रहे हैं इस जगह पे, ओके. एंड ये जो स्टिक कर रहे हैं इसके स्टिकनेस की वजह से यहाँ पे वो रह जाते हैं एंड सिलिया फिर उसको प्रोपेल बैक करते हैं, ठीक है, और इस तरह पीछे की तरफ उसको लेके जाते हैं. सो वो एयर सिर्फ इनसाइड छोड़ता है रिस्पायरेटरी सिस्टम. इसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो सेल्स हैं, जो पूरा ट्रैक है विंड पाइप का, जो फिल्टर्ड हो, जिसमें माइक्रोब्स एंड डस्ट पार्टिकल्स नहीं हो, ओके. सो म्यूकस जो है बेसिकली एंड सिलिया जो है वो ये सेल्स आपके पास जो सिलिएटेड कॉलुनर एपिथेलियल सेल्स एंड म्यूकस सेल्स हैं तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं. सो ये बेसिकली फिल्ट्रेशन करते हैं उस एयर की जो हमारे लंग्स में जा रहा है, ठीक है. अलॉन्ग विद दैट अल्वेवलाई को आप देख सकते हो कि अल्वेवलाई रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स उसमें मौजूद होते हैं. और हमने डिस्कस किया था कि यहाँ इस पोजीशन से पहले जो हमारे पास पीछे की तरफ जो पूरी शाख गई हुई है ब्रोंकाई की या जो भी आपके पास ट्रेकिया का पार्ट है विंड पाइप का, सो वहाँ पे कोई भी परमिएबिलिटी नहीं है, कोई भी आपके पास वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो सकती. ये जो पोर्शन है आपके पास, ये पूरा का पूरा पोर्शन जिसको हम कहते हैं अल्वेवलाई, ठीक है. सो ये जो अल्वेवलाई है यहाँ पे आपके पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकती है. ये कहलाए जाते हैं रेस्पिरेटरी आपके पास जो ब्रोंकियोल्स हैं जो लीड करते हैं इनटू दी अल्वेवलाइज. एंड यही अल्वेवलाइज फिर आपके पास जो है वो प्रेशर के बेस पे आगे हम उसको स्टडी करेंगे. कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन जबकि यहाँ पे ज़्यादा होती है तो उसको अल्वेवलाई की तरफ भेजा जाता है, जबकि जो ऑक्सीजन हमने बॉडी के अंदर
जो है इनहेल किया हुआ है उसको एक्सचेंज किया जाता है विद द ब्लड कैपिलरीज, एंड ब्लड कैपिलरीज उसको लेके फिर हार्ट की तरफ लेके जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एक्ट ऑफ ब्रीथिंग, वेंटिलेशन। ओके, पल्मोनरी वेंटिलेशन जो है, जो लो प्रेशर, हाई टू लो प्रेशर की तरफ जो आपके पास गैस जा रहा होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, रिलाइज ऑन द गैस ट्रेवलिंग फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर। हाई टू लो प्रेशर का मतलब क्या है कि हमारे पास डिफ्यूजन, तो ऑलरेडी वी नो दैट दी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। बट यहाँ पे जो हमारे पास गैसेज हैं, हमारे बॉडी के जो लंग्स हमारे पास इनहेलेशन करते हैं उसमें बेसिकली डायफ्राम का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, डायफ्राम जो है वो एरिया एंड वो प्रेशर सेट करता है जो हमारे पास सूटेबल है फॉर द टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, वरना तो अगर डायफ्राम कोई इसमें पार्ट प्ले नहीं करता, कॉन्ट्रैक्शन नहीं करता, तो हमारे पास कोई भी इनसाइड मूवमेंट ऑफ द ऑक्सीजन पॉसिबल या एयर पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है, सो डायफ्राम है, और डायफ्राम के साथ साथ जो हमारे पास जो चेस्ट है हमारे पास, ठीक है, और वो जो चेस्ट है हमारे पास, वो आपके जो रिब्स हैं वहाँ पे आपके पास इंटरकोस्टल मसल्स हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है। वो जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो बेसिकली, और डायफ्राम बेसिकली आपके पास रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इनहेलेशन एंड अलॉन्ग विद दैट आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपायरेशन। ठीक है, सो बेसिकली इंस्पायरेशन में क्या होता है, इंस्पायरेशन इनहेलेशन ऑफ द ऑक्सीजन के डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। ठीक है, जब कभी भी टेक इन करते हैं हम तो हमारे पास डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम हैपन्स। ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्शन जो है अलॉन्ग विद दैट हमारे पास दो किस्म के इंटरकोस्टल मसल्स हैं। इंटरकोस्टल मसल्स हमारे पास जो हैं वो इंटीरियर भी है और हमारे पास एक्सटीरियर भी है। ठीक है, एक्सटीरियर इंटरकोस्टल मसल एंड इंटीरियर इंटरकोस्टल मसल। ओके, सो ये दोनों आपके पास, जब हमारे पास डायफ्राम कंट्रैक्ट करता है अलॉन्ग विद इंटीरियर, और इंटीरियर आपके पास जो है वो क्या करेंगे, इंटरकोस्टल मसल वो रिलैक्स करेंगे। सो उसकी वजह से एरिया बढ़ेगा और प्रेशर कम होगा इनसाइड द लंग। सो व्हेन द प्रेशर डिक्रीजेज एंड द एरिया इनसाइड द thoracic cavity increases, so the air will get inside to the lung. ओके, एक्सपायरेशन जो है बेसिकली डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करते हैं। ठीक है, जो आउटर इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो रिलैक्स करते हैं, इंटरनल आपके पास जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जबकि डायफ्राम आपके पास रिलैक्स करेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट द एरिया डिक्रीजेज इन द thoracic cavity विच इंक्रीजेज द प्रेशर। हमें पता है कि हमारे पास जितना एरिया बढ़ेगा उतना आपके पास जो है वो प्रेशर उसमें कम होगा। ठीक है, और जितना आपके पास एरिया कम हो जाएगा, अगर किसी भी वैक्यूम में हमारे पास एरिया अगर कम हो रहा है तो इट मीन्स के वहाँ पे प्रेशर आपके पास बढ़ेगा। सो यही काम होता है विद द हेल्प ऑफ द डायफ्राम ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन एंड द एक्सपायरेशन। ओके, अच्छा जी, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन में बेसिकली जिस तरह हमने डिस्कस किया कि डायफ्राम जो है, नाउ लुक एट दी इनहेलेशन। इनहेलेशन में क्या है कि डायफ्राम आपके पास नीचे की तरफ मूव करता है। डायफ्राम जो है ये जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एंड बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्ट्रैक्शन द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स, इफ़ यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ जो लंग्स हैं और यहाँ जो हमारे पास लंग्स हैं, इन दोनों के वॉल्यूम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है जबकि यहाँ पे वॉल्यूम कम है, क्योंकि यहाँ पे कंट्रैक्शन हो रही है डायफ्राम की, और इस कंट्रैक्शन की वजह से आपके पास thoracic कैविटी में एरिया बढ़ जाता है। सो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज़ इन द एरिया आपके पास यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ द डिक्रीज़ इन द प्रेशर हमारे पास CO2 जो है वो क्या हो जाए, ऑक्सीजन जो है वो ईजीली अंदर लंग्स की तरफ आ सकता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द एयर। जब हमारे पास इनहेलेशन हो जाती है, जब हम एक्सहेलेशन करते हैं उसके बाद, तो क्या होता है कि डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है अलॉन्ग विद द इंटरकोस्टल मसल्स एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल आपके पास एंटागोनिस्टिकली चलते हैं अपोजिट उसके, जबकि जो आपके पास डायफ्राम के रिलैक्सेशन है, ठीक है, डायफ्राम क्या कर जाता है, जब रिलैक्स कर जाता है तो इसकी रिलैक्सेशन बेसिकली यहाँ पे एरिया को क्या कम कर देता है, कम कर देता है, एंड प्रेशर जो है आपके पास बढ़ जाता है। सो जब भी प्रेशर बढ़ जाता है तो फिर वहाँ इनसाइड वैक्यूम कोई भी हो उसमें जो एयर मौजूद है इट विल टेंड टू मूव आउटसाइड मोर ईजीली। सो बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम द
oxygen will get inside the body, okay, and by the relaxation of the diaphragm, the oxygen, the carbon dioxide will get outside of the body, okay. लुक एट हेयर इनहेलेशन. सो जिस तरह हमने पढ़ा कि डिस्कस किया कि इनहेलेशन में हमारे पास जो इंटरनल मसल्स हैं, इंटरकोस्टल मसल, वो रिलैक्स कर जाते हैं, जबकि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट हमारे पास डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, ठीक है. सो हम ये अपने जहन में याद कैसे रखेंगे कि डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन के साथ हमारे पास एक्सटर्नल जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं उनकी कंट्रैक्शन हो रही है दोनों की, जबकि इंटरनल जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो रिलैक्स हो रहे हैं एट दैट टाइम, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इनहेलेशन, जब हमारे पास अंदर की तरफ ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है, आउटसाइड से. सो इट इनहेलेशन हमारे पास. अच्छा जी, रिब केज जो है वो अपवर्ड मूव करेगा एंड आउटवर्ड मूव करेगा बिकॉज ऑफ द एरिया इंक्रीजिंग फैक्टर, ओके. वॉल्यूम ऑफ द thoracic cavity definitely by the contraction of the diaphragm will increase. Along with that, the pressure is inversely proportional to the area, okay. So area and pressure are inversely proportional, so the area will increase during the inhalation by the contraction of the diaphragm, while the pressure will decrease by the increase in the area because of the contraction of the diaphragm, okay. So because of that the air will move inside the lungs. और कौन सा एयर किस चीज़ की हमें ज़रूरत है? हमें है ज़रूरत ऑक्सीजन की, ओके. अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेलेशन, जहाँ पे हमने जिक्र किया कि कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जो हमारे पास इंटरकोस्टल मसल्स हैं, इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जबकि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एक्सटर्नल रिलैक्स कर जाएंगे, एंड डायफ्राम विल आल्सो रिलैक्स. अगेन इन द एक्सेलेशन दीज बोथ आर एक्टिंग सिमिलरली. सो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्सिंग, डायफ्राम रिलैक्सिंग, वाइल द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है. रिब केज अपोजिट हो जाएगा इनहेलेशन के, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड आ जाएगा बिकॉज एरिया हमारे पास रिड्यूस हो रहा है, वॉल्यूम हमारे पास क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. वॉल्यूम इज गोइंग टू डिक्रीज एंड द प्रेशर विल अल्टीमेटली इंक्रीज बिकॉज इन द रिडक्शन ऑफ द वॉल्यूम. सो द एयर इनसाइड द लंग्स विल टेंड टू मूव आउटसाइड ऑफ द बॉडी, एंड वो कौन सा हमारे पास हवा में या एयर में ऑक्सीजन की जगह अब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल के आएगा फ्रॉम द लंग्स, ओके. सो दिस इज इनहेलेशन, एक्सेलेशन, सॉरी. ओके जी, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स बेसिकली इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन जो है वो साइक्लिक मैनर में होती है चेस्ट वॉल और लंग्स के मूवमेंट की वजह से, कि डायफ्राम हमारे पास क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है. सो हमारे पास जो मूवमेंट होती है चेस्ट वॉल्स की और लंग्स की, उसकी वजह से ब्रीथिंग अकर, ठीक है. The resulting changes in pressure causes changes in lung volume, amount of the air the lung are capable of occupying. जब आपके पास लंग्स में अपनी एक कैपेबिलिटी है बिकॉज ऑफ इट्स एरिया पर वॉल्यूम, जो आपके पास एरिया प्रेशर पर वॉल्यूम है उसकी वजह से, सो जो आपके पास चेंजेस इन द मूवमेंट ऑफ द चेस्ट एंड द वॉल्स ऑफ द लंग्स जो आपके पास अगर हो रही है तो वो रिज़ल्ट होती है इनटू द चेंजेस इन द प्रेशर, ठीक है. सो जब आपके पास प्रेशर बदलेगा, जो प्रेशर आपके पास चेंज हो जाएगा एंड एरिया आपके पास बढ़ जाएगा, ठीक है. सो वॉल्यूम आपके पास चेंज हो जाता है, प्रेशर आपके पास चेंज हो जाता है, ठीक है. सो द अमाउंट ऑफ एयर इन द लंग्स आर कैपेबल ऑफ ऑक्यूपाइंग, मतलब कि उसमें मज़ीद एयर आने की गुंजाइश पैदा हो गई है, एरिया बढ़ गया है, प्रेशर रिड्यूस हो गया है, सो इट विल गेट इनसाइड दी बॉडी, ठीक है. जबकि ये जो वॉल्यूम है बेसिकली ये डिपेंड करता है अपॉन द जेंडर, एज और डिफरेंट रिस्पायरेटरी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है. ये वेरी करता है, वेरिएशन है इसमें रिगार्डिंग द जेंडर, एज एंड जो डिफरेंट आपके पास अगर कोई रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है. सो कांस्टेंट नहीं रहता, डिफरेंट फैक्टर्स हैं इसके. और दूसरी बात यह है कि हमारे पास द एवरेज लंग कैपेसिटी ऑफ एन अडल्ट जो है वो 6 लीटर एयर है जो उसके लंग्स में आ सकती है, जिसको हम कहते हैं टाइडल ब्रीथिंग. नॉर्मल जो आपके पास रेस्टिंग में होती है, वॉल्यूम ऑफ द एयर है जो इनहेल या एक्सेल करते हैं हम इन अ सिंगल ब्रीथ, ठीक है. सिंगल ब्रीथ में जितने अमाउंट ऑफ एयर को हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं. सो द वॉल्यूम ऑफ द एयर इन अ
सिंगल सच ब्रेथ, सिंगल ब्रेथ में एक ही सांस में अगर हम एक ही उसमें जो हमारे पास ब्रीथिंग रेट है उसमें हमारे पास जो वॉल्यूम है बेसिकली वो टाइडल वॉल्यूम कहलाया जाता है सिंगल ब्रीथ में, जो हमारे पास अमाउंट ऑफ द एयर जो एंटर होती है हमारी बॉडी में, दैट इज़ नोन एज दी टाइडल ब्रीथिंग, एंड जो हमारे पास कैपेसिटी ऑफ दी लंग बताती होती है। रिस्पायरेटरी वॉल्यूम या पल्मोनरी वॉल्यूम जो है वही इनहेल्ड है हमारे पास इन अ गिवन टाइम, और अमाउंट ऑफ एयर जो हमारे पास लंग्स में इंटर होती है नॉर्मल इनहेलेशन में या रेस्ट में, ठीक है, तो वो हमारे पास है 500 ml टाइडल जिसको हम कहते हैं। एवरेज जो हमारे पास टाइडल वॉल्यूम है वो है 500, जो हमारे पास क्या है रेस्ट में होती है, एवरेज जो है हमारे पास 500 है, ठीक है। एंड सेम सिमिलर अमाउंट ऑफ द एयर विल गेट रिड ऑफ द बॉडी, विल गेट आउट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन। ओके, सो 500 ml। बट जब हम एक्स्ट्रा एयर इनहेल करते हैं अबव द टाइडल वॉल्यूम, अबव द अमाउंट ऑफ द गैसेस के जो हमारे पास अंदर आ सकते हैं इन यूनिट टाइम या ब्रीथ में, सिंगल ब्रीथ में, उससे अबव अगर हम क्या करेंगे इनहेल करेंगे तो उसकी कैपेसिटी अबव द टाइडल भी हमारे पास जो मैक्सिमम कैपेसिटी है इस कैन बी एज हाई एज 3000 ml। ओके, सो जो 3000 ml है हमारे पास वो एक्स्ट्रा इनहेल्ड अबव द टाइडल वॉल्यूम है, और जो हमारे पास नॉर्मल वॉल्यूम है वो 500 ml है। एवरेज टाइडल वॉल्यूम जो हमारे पास जब हम एक्सहेलेशन भी करते हैं और जब हम इनहेलेशन भी करते हैं वो है 500 ml। ओके, और एक्सहेलेशन में हमारे पास जो है सेम अमाउंट ऑफ टाइडल वॉल्यूम मौजूद होता है, ठीक है। सो रेगुलेशन नेक्स्ट है हमारे पास, रेगुलेशन ऑफ वेंटिलेशन। ओके, रिस्पायरेटरी न्यूरॉन्स जो है मेड्यूला में, बेसिकली हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ब्रेन जो है हमारे पास वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दी इम्पल्सेस एंड फॉर दी मैसेजेस फॉर दी इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। तो इसमें हमारे पास दोनों होती है, वॉलंटरी भी होती है और इनवॉलंटरी भी होती है। बहरहाल जो हमारे पास रेस्पायरेटरी न्यूरॉन्स हैं और जो हमारे पास ब्रेन में जो एरिया है वो मेड्यूला ओब्लांगेटा है, जो हमारे पास क्या करता है, जो कंट्रोल करता है हमारे पास इसको इंस्पायरेशन को एंड एक्सपायरेशन को। न्यूरॉन्स इन दी पोन्स मॉड्यूलेट वेंटिलेशन के किस तरह वेंटिलेशन होगी, वॉलंटरी होगी, इनवॉलंटरी होगी, मींस कि हमारी बॉडी क्या इंटरप्रेट करवा, हमारा ब्रेन क्या इंटरप्रेट करवा रहा है हमारी बॉडी को, ठीक है, क्योंकि हम वॉलंटरीली भी हम क्या कर सकते हैं, ब्रीथिंग को रोक भी सकते हैं और उसको इन्हेंस भी कर सकते हैं, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक, उस लिमिट के बाद फिर हमारे पास जो इनवॉलंटरी है ऑटोनोमिक वो खुद ब खुद उसको क्या करेगी, असिस्ट करेगी और कंट्रोल करेगी, ठीक है। सो रिथमिक पैटर्न ऑफ द ब्रीथिंग अराइजेस फ्रॉम द नेटवर्क ऑफ स्पॉन्टेनियस डिस्चार्जिंग न्यूरॉन्स, ठीक है, और यही मॉड्यूलेशन जो है अलॉन्ग विद द केमियो रिसेप्टर, ठीक है, क्योंकि केमिकल रिसेप्शन भी आपके पास होती है, इफेक्टर्स जो है वो उसको फंक्शन को फिर वायबल बनाते हैं, जो भी उसको इम्पल्स या जो भी उसको मैसेज फ्रॉम द ब्रेन मिल रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास हायर ब्रेन सेंटर है जहाँ पे आपके पास रिफ्लेक्सेस लिंक करते हैं और वेंटिलेशन को या इनहेलेशन एक्सपायरेशन को क्या करते हैं, वायबल बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास ब्रेन है बेसिकली, अगर हम ब्रेन में बात करें तो हमारे पास जो है वो सेरेब्रम आउटर पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है, सेरेब्रम जो है हमारे पास आउटर पार्ट ऑफ द ब्रेन, आउटर पार्ट है हमारे पास ब्रेन का। अगर हम ब्रेन को देखें जो हमारे पास सेरेब्रम मौजूद है तो यहाँ पे आपके पास जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स मौजूद होता है, ठीक है, और वो जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो बेसिकली आपके पास आउटर रीजन है और वो वॉलंटरी ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, ठीक है। कौन सी ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, वॉलंटरी ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। वॉलंटरी ब्रीथिंग का मतलब ये है कि जो हमारे कंट्रोल में है और हम उसको एक सर्टेन लिमिट तक कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे अगर हम इस ब्रेन के बाकी पोर्शंस को डिस्कस करें तो हमारे पास मौजूद है मेड्यूला, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मौजूद है मेड्यूला, और ये मेड्यूला जो है ये बेसिकली इनवॉलंटरी ब्रीथिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनवॉलंटरी ब्रीथिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इनवॉलंटरी ब्रीथिंग जो है वो आपके पास यहाँ पे भी दो किस्मों की होती है, अगर हम उसको सेपरेटली देखें, ठीक है। मेड्यूला
एंड इनवॉलंटरी ब्रीथिंग। और ये इनवॉलंटरी ब्रीथिंग में भी आपके पास दो पोर्शंस हैं, जो एक आपके पास इंस्पायरेशन को और एक आपके पास एक्सपायरेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। सो एक को हम कहते हैं इंस्पायरेशन सेंटर एंड एक है हमारे पास एक्सपायरेशन सेंटर, ठीक है। ये दोनों कंट्रोल करते हैं हमारे पास इनवॉलंटरी जो ब्रीथिंग है, ठीक है। सो ये जो मेड्यूला है बेसिकली ये हमारे पास रिस्पायरेटरी सेंटर कहलाया जाता है, कि ये रिस्पायरेशन को असिस्ट करता होता है। ये एक सर्टन लिमिट तक चेक करता है कि वेदर द सेरेब्रम कैन कंट्रोल द ब्रीथिंग वॉलंटरीली आर नॉट। एक सर्टन लिमिट तक आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, फिर उस सेंट्रल लिमिट के बाद जो है डायरेक्टली जो मेड्यूला है वो क्या करता है, टेक ओवर करता है। एंड टेक ओवर करने के बाद वो उसको क्या कर लेता है, वापस इनवॉलंटरी एक्शन के थ्रू इंस्पायरेशन या अगर एक्सपायरेशन चाहिए होती है, जो भी बॉडी के रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रोसीजर फर्दर चलना है, सो मेड्यूला विल कंट्रोल दैट प्रोसीजर आर दैट सिस्टम। एक है हमारे पास इसमें लिम्बिक सिस्टम, और वो लिम्बिक सिस्टम जो है वो बेसिकली अच्छा, लिम्बिक सिस्टम से पहले हम इसको दोबारा देख लेते हैं ये स्लाइड्स के हवाले से, ठीक है। कि जो हमारे पास कॉन्शियस में होती है, जिस तरह हमने जिक्र किया, और अनकॉन्शियसली जो हमारे पास इनवॉलंटरीली ब्रीथिंग है, दोनों हमारे पास सेंटर मौजूद है, ठीक है। सो जो ब्रीथिंग सेंटर है हमारे पास वो मेड्यूला में लोकेट करता है, ठीक है, जिस तरह हमने डिस्कस किया अभी। और इनवॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग जो है वो आपके पास क्या करता है, कैरी आउट करता है। जबकि वेंट्रल पोर्शन ऑफ द ब्रीथिंग सेंटर जो है वो इंक्रीज करता है रेट को, एंड वो इंस्पायरेटरी सेंटर है। जिस तरह अभी हमने पहले जिक्र किया कि मेड्यूला में भी फिर जो आपके पास है दो सेंटर्स हैं, एक आपके पास इंस्पायरेटरी सेंटर है और एक एक्सपायरेटरी सेंटर है, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जो वेंट्रल आपके पास पार्ट है, वेंट्रल जो पोर्शन है वो इंस्पायरेटरी सेंट्रल होगा, एंड जो आपके पास डॉर्सल पोर्शन है वो एक्सपायरेटरी सेंटर होगा, ठीक है। लेटरल और डॉर्सल जो आपके पास पीठ और पेट वाली बात हमने की थी, वेंट्रल टूवर्ड्स द सेंटर जो पेट की बात होती है, और जो आउटर पोर्शन होता है, एक्सटीरियर लेटरल पार्ट होता है, उसको हम डॉर्सल कहते हैं, ठीक है। सो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपायरेशन, डॉर्सल पार्ट ऑफ द मेड्यूला, एंड द वेंट्रल पार्ट ऑफ द मेड्यूला इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंस्पायरेशन, ओके। अच्छा जी, ये आपको नज़र आ रहा है इस डायग्राम में ब्रेन के पोजीशन, जो आपके पास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, यहाँ पे इस जगह पे आपके पास बेसिकली जो इनवॉलंटरी हमारे पास उसकी कंट्रोल होती है वो मौजूद है, ठीक है, इनवॉलंटरी कंट्रोल के लिए। और यहाँ पे मेड्यूला जो है ये बेसिकली आपके पास ब्रीथिंग सेंटर है, और इसमें आपके पास फिर इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन के दोनों अलग अलग सेंटर है, ठीक है। जो आपके पास वेंट्रल है एक, और एक आपके पास क्या है, डॉर्सल है, ठीक है। सो वो दोनों आपके पास मौजूद है। अच्छा जी, ये आपको नज़र आ रहा है जिस तरह के कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के सेंसर्स यहाँ पे वोटा में मौजूद है, और वो इसी तरह सेंडिंग करते हैं मैसेज के, और फिर आपके पास नर्व सिग्नल्स ट्रिगर करते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स को। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये नर्व इम्पल्सेस यहाँ पे रिसीव होके ब्रेन को, और वहाँ फिर डिसीजन लेके इसकी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स जो है रिब मसल्स की एंड डायफ्राम की वो होती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास स्लाइड में वो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बारे में, जो भी हमने डिस्कस किया कि डेप्थ में आपके पास रेट एंड डेप्थ ऑफ द रिस्पायरेटरी मूवमेंट अनकॉन्शियसली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग आपके पास पॉसिबिलिटी है सेरेब्रल कॉर्टेक्स की थ्रू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। दूसरी बात यह है कि पर्सन कैन आल्सो ब्रीथ, जिस तरह हमने कहा, लेकिन ऑक्सीजन डिक्लाइंस टू अ सर्टन लेवल जो है लो इनफ, सो वो अपनी कॉन्शियसनेस लूज़ कर जाएगा, एंड आफ्टर द कॉन्शियसनेस लूजिंग जो आपके पास स्टेप है, वहाँ पे आपके पास जो है वो नॉर्मल जो रिस्पायरेटरी सेंटर है वो रिज्यूम हो जाता है मेड्यूला से, ऑटोमेटिकली कंट्रोलिंग द रिस्पायरेशन, ठीक है। जिस तरह हमने लिम्बिक सिस्टम का अभी जिक्र किया था, तो लिम्बिक सिस्टम जो है आपके पास जो इमोशंस हैं उस टाइम में उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, कि फियर में किस तरह कंट्रोल करते हैं, ब्रीथिंग रेट किस तरह बढ़ती है, कम होती है, या उसका क्या रिस्पॉन्स आपके पास आता है, या आपके पास जो है वो रिस्पायरेटरी सेंटर जो है आपके पास चेंज हो रहा है इन दी सारोनेस में, ठीक है, खुशी में। सो वो डिफरेंट जो है वो लिम्बिक सिस्टम के साथ रिलेट करता है, एंड लिम्बिक सिस्टम आपके पास यहाँ पे मौजूद होता है। ये अगर यहाँ पे हम गौर करें तो लिम्बिक सिस्टम आपके पास यहाँ पर मौजूद होगा, ठीक है। अच्छा जी,
यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं क्लियरली कि जो इमोशंस एंड वॉलंटरी है, ठीक है, एक्शंस जो आपके पास यहाँ पे अगर देखें, सो वॉलंटरी कंट्रोल है, और वॉलंटरी कंट्रोल हायर ब्रेन सेंटर्स में लिम्बिक सिस्टम मौजूद है एंड वही कनेक्ट होता है टू दी मेडुला ओब्लांगेटा एंड पोन्स, ठीक है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन और पीएच लेवल को कीमो रिसेप्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो असिस्ट करते हैं, एंड एफेरेंट सेंसरी न्यूरॉन्स जो लेके आने वाले हैं, एफेरेंट जो है आपके पास लेके जाने वाले, ठीक है, सो मेडुला ओब्लांगेटा तक आके फिर वो रिएक्शन सेंटर उसको उसी तरह बिहेव करता है। एंड ये आपके पास इनवॉलंटरी एंड मेडुला ओब्लांगेटा फिर उन्हीं के बेस पे, ठीक है, यहाँ से जो उसको मैसेजेस मिल रहे हैं उसके बेस पे वो सोमेटिक मोटर न्यूरॉन्स एंड सोमेटिक जो आपके पास इंस्पायरेशनल मोटर न्यूरॉन्स हैं उनकी मदद से डिफरेंट जो आपके पास मसल्स हैं उनकी क्या करते हैं, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करते हैं, जिस तरह के एब्डोमिनल मसल्स हो गए, इंटरकोस्टल मसल्स हो गए, डायफ्राम हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास इसी तरह ये जो पोर्शंस आपको दिखाए गए हैं इसमें ये कलर्ड पार्ट से आपको उसके नर्व जो भी आपके पास यहाँ पे जा रहे हैं इस पूरे रीजन में वो आपको इंडिकेट किए गए हैं अलॉन्ग विद दी कलर, ठीक है, कि वो किस कलर के न्यूरॉन्स आपके पास जा रहे हैं और वो बेसिकली कौन से एरिया को डिनोट करते हैं, ठीक है, कि कीमो रिसेप्टर की जो इम्पल्सेस हैं वो कहाँ से कैरी हो रही है, वो पूरा पाथवे आपको बताया है। आपको यहाँ पर जो है ये वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है एंड मेडुला ओब्लांगेटा, सो हमारे कोर्स में यहाँ पर हमने एम्फसाइज करना है मोस्टली, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्कूबा ड्राइवर क्या करता है, टिपिकल जो है आपके पास अंडर वाटर ब्रीथिंग अपरेटस है, कंटेंड अंडर वाटर सेल्फ कंटेंड अंडर वाटर ब्रीथिंग अपरेटस है, और यहाँ पे मिक्सचर होता है एयर के साथ नाइट्रोस का, जिसका जो 35% ऑक्सीजन एंड 65% नाइट्रोजन कैरी करता है। ये असल में क्या करता है, बहुत कंप्रेस एयर रखता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर डाउनिंग, जब उसका प्रेशर डाउन हो जाए सो एम्बिएंट प्रेशर में डाइवर्स क्या कर सकता है, ईजिली कंफर्टेबली ब्रीथ कर सकता है एट दी डेप्थ, ओके। सिमिलरली जो है हमारे पास बुक में आपको दिया हुआ है कि ये डायग्राम आपने ड्रा करनी है और लेबल करनी है, एंड अलॉन्ग विद दैट आप इसको क्या करेंगे, ट्रेस भी करेंगे उस पाथवे को जो आपके पास डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा रहा है। सो यू विल आल्सो हैव टू ट्रेस, अगर आप अपने बुक में देखो तो आपको ये असाइनमेंट भी दी गई है, ठीक है। सो ये आपको नज़र आ रहा है टिशू है जो हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जो हमारे पास ऑर्गन है, ये उस के टिशू की पिक्चर है, इमेज है, और इसमें आपको नज़र आ रहा है अल्वेवलाई, अल्वेवुलर डक्ट और ब्रोंकियोल्स, अल्वेवुलर जो ब्रांचेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी है। सो ये जो आपने ट्रैक है इसमें शो करना है कि कौन से एरिया से कौन से एरिया में आपके पास ट्रेवलिंग ऑफ दी ब्लड होती है, ठीक है। सिमिलरली ये रिफ्लेक्सेस जो आपके पास काम करते हैं कि रिस्पायरेटरी रेट इंक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ इन द पीएच एंड O2 लेवल, ठीक है, और डिक्रीज़ मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि कोई भी इस तरह हार्ड कंडीशन आ रही है जहाँ पे आपके पास रिस्पायरेटरी रेट इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा अल्टीमेटली कि वो इंक्रीज़ इन द पीएच एंड ऑक्सीजन एंड डिक्रीज़ इन द कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है, होमियोस्टेसिस रिस्टोर होगी, एंड सिमिलरली फिर वो रिफ्लेक्सेस सारे जो है वो फर्दन क्या करेंगे, अपने डिफरेंट जो इफेक्टर्स हैं उनको सिग्नलिंग करेंगे। एंड फॉर एग्जांपल हम अगर वेसल्स की बात करें, सो वेजो कंस्ट्रिक्शन जिस तरह हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, सो ये वहाँ पे वेजो मोटर सेंटर जो है वो स्टिमुलेट होकर वेजो कंस्ट्रिक्शन करते हैं, एंड वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से बेसिकली जो इंक्रीज कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज हार्ट रेट है। सो इंक्रीज हार्ट रेट की वजह से आपके पास इंक्रीज ब्रीथिंग रेट के लिए हेल्प आउट होता है ब्लड को एक्सचेंज करने के लिए, ओके। अच्छा जी, रेगुलेशन ऑफ वेंटिलेशन है आपके पास कि हमारे पास कीमो रिसेप्टर जो है वो इंक्रीज़ करते हैं डेप्थ एंड रेट ऑफ द रिस्पायरेशन को, इसको हम दोबारा डिस्कस करेंगे उसमें नेक्स्ट में ट्रांसपोर्ट ऑफ द ब्लड एंड ऑक्सीजन के साथ साथ, ठीक है। और फिर ये हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर है, उससे पहले मैं आपको असाइनमेंट बताऊं, ये वो जो पिछला पोर्शन है वो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की दोनों की एब्जॉर्प्शन हम एक साथ कर लेंगे बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द टाइम, फिर वो लेंथी है उसको हम नहीं कवर कर सकेंगे। सो असाइनमेंट हमारे पास जो है आपको नज़र आ रही है कि आपने स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्रा करना है, मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीथिंग इन मैन को डिस्क्राइब करना है, ब्रीथिंग कैसे कंट्रोल होगी, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। सो यू विल ड्रा द डायग्राम, लेबल डायग्राम, एंड आई विल आल्सो answer these question on your notebooks, and you will upload
it on your group. Okay, so I'll check it out. So इंशाल्लाह कल हम फिर दोबारा उसको डिस्कस करेंगे, और अभी हम जो हमारे पास बुक में वो दूसरे आपको वर्कआउट दिए हैं हम उसको डिस्कस करेंगे.